ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੋਬਰਨ ਧਨਪੁਰ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ, ਮਾਤਾ ਕਲਸਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਦਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਓ, ਰੇਸ਼ਮੀ 'ਚ ਲਪੇਟ ਲਓ, ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਲਓ। ਜਦ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਪਰਖ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਮੈਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁੱਲ ਹੀਰੇ ਦਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੀਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਹੀਰੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਹੀਰੇ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਉਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਭੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਹੀਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੀਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ, ਪੱਥਰਾਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੀਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮਲੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਹੀਰੇ ਵਾਲੀ। ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਡਾਢਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ 253-63 ਦੇ ਲਗਭਗ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਗਏ ਅੰਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ ਨਾ, ਅੰਤਮ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਕੁਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਕੱਠਿਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਗਏ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੋਈ, ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੂਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਲਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੀ ਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ?
वो कहते भाई हर सो हीरा, हरी वर्गा हर सो हीरा। एक हीरा होता है, हीरे वर्गा परमात्मा। हर हर नो इत्थे हीरे नूं कहा, परमेश्वर के नाम नूं कहा। फिर पढ़ो, असीं पहले पढ़िया सी भी हीरे जैसा। दूसरे वक्त ये गल कही सी महाराज, कहते ये हीरा जिहड़ा जन्म है बड़ा कीमती बेशुमार। कहते हीरे जैसा जन्म है, ये जन्म भी हीरे वर्गा बड़ा कीमती है। ते मनुख ने कीता हर सो, एक हार क्या है इत्थे परमेश्वर। मैं तां बेनती करिया, हीरे दे अर्थ कल्ला हीरे ही नहीं है, मामा दे पुत भी हीरे हुंदे ने। हीरा गुर का शब्द रतन है, हीरे जित ये भी हीरा, शब्द भी हीरा है, ਉਹਦਾ नाम भी हीरा है। बाबा जी कहते एक हीरा इत्थे हुण परमेश्वर नूं क्या है, एक हीरा जन्म नूं क्या है, एक हीरा शब्द नूं क्या है, एक हीरा पत्थर नूं भी क्या है। हीरे बड़ी कहते हर सो हीरा, हरी हीरा वर्गा, हीरे वर्गा ही कह सकते हैं। इन्ना मतलब कीमती है। छाड़ के हर सो हीरा छाड़ के करे आल की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत पाखै रविदास। कबीर साहब जी कहते हरी वर्गे हीरे नूं, भाव हीरे नूं, परमात्मा हीरा है, ਉਹਦਾ नाम छड्ड के, ਉਹਨੂੰ छड्ड के किसी होर दी आस करते ने। हरी वर्गे परमात्मा हीरा है, उस हीरे नूं छड्ड के, इन्नी बड़े कीमती छड्ड के कौडियां मगर जिहड़े तुरे फिरदे ने, वो हीरा जिहड़ा जन्म है ਉਹਨੂੰ छड्ड के इधर उधर भड़कदे फिरदे ने। कहते हीरियां दे सागर समुद्र परमात्मा नूं छड्ड के छपड़ियां ते जिहड़े तुरे फिरदे ने। हर सो हीरा छड्ड के कबीर साहब जी अगे कहते करे आन की आस। आस का मतलब इच्छा, आस का मतलब भरोसा, आस का मतलब यकीन, आस का मतलब तांग है। होर किसी चीज़ की इच्छा तांग करते ने, भरोसा करते ने। फिर कबीर साहब जी फिर कहते रिजल्ट सुन लो। किसी तो आस रखी है, मतलब हम सौखे जे अर्थ जे कराए दे ये बन गए भी जे रब नूं छड्ड के, केवल रब नूं छड्ड के होर किसी की आस करदा है ना कोई बंदा, ते कहते उन्हां वास्ते फिर ये हुक्म कीता। कबीर साहब जी कहते ते नर, ते दा बहुवचन है, ओह नर दा मतलब बंदे जेड़े हरी नूं छड्ड के दूसरे दी आस करते हैं। ते नर वो बंदे फिर दोजक जाएंगे मतलब फ्यूचर दे विच चले जाणगे। ते नर दोजक की हुंदा नरक, इस्लाम ने दोजक किया नहीं। कहते वो नर मोह मनुख जेड़े रब नूं छड्ड के होर दी आस भी रखते ने, होर दी तांग रखते ने, होर ते भरोसा रखते ने। ते नर दोजक जाएंगे। कहते मैं नहीं कहना, ये मैं सुनी है गल, मेरे नाल बैठ के विचारी है गल। की ने सत भाख है, भाखना हुंदा है बोलना। सत का मतलब
सच सत भाखै रविदास। कबीर साहब जी कहते ये रविदास जी ने गल सच्ची कही है, सच्ची 100 आने सच्ची। जेड़ा मनुख उस वाहिगुरू नूं छड्ड के, हर नूं छड्ड के, परमात्मा नूं छड्ड के होर दी आस करेगा ना, वो नरका च जाए। गल ही निबेड़ती ना, लकीर ही फेर देती। तो हुण जे सोचिए भी बाबे रविदास ने गल कह दी, असीं पढ़ ली, गल मुक गई, तो फिर जेड़ा गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकदा है ना, ये सब दे लई है। नहीं होर दी आस ना करी। हुण पढ़ो उन्हां दी बाणी दा नुकता पढ़ी, मैं हुणी पढ़ के हटिया सारे असीं। बाबा रविदास जी फिर तुहाडी आस किहदे ते आ? तुहाडी किसे दे होनी है, किसी ब्राह्मण ते होनी है, किसी मंदिर ते होनी है, किसी पूजा ते होनी है, किसी फल ते होनी है, किसी आरती ते होनी है, किसी तीर्थ दे इशनान ते होनी है। कहते ना 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 ना, मेरी किते आस नहीं है। इन्हां ते किते आस, बाणी पढ़ो, ये सारी गल्लां लिख रही उन्होंने, इन्हां ते आस ही कोई नहीं। मेरी आस नहीं है। मेरी आस की आ? कहते बहुत जन्म विछुरे थे माधो। इत्थे रुक जाओ। ये जिहड़ा माधो विचकार लिखिया ना, ਇਹਦਾ मतलब ये है कि बाबा रविदास जी महाराज माधो परमेश्वर ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, डिस्कसन कर रहे हैं भी हम सर दीन, मेरे वर्गा कोई दीन नहीं है। बाबा जी कोई तो होगा ਤੁਹਾਡੇ वर्गा दीन, पूरी काशी ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी नहीं सी। कहते ना, बराबर मेरे बराबर कोई है ही नहीं। पर हिंदुस्तान चो कहते नहीं, हम सर दीन, मेरे वर्गा मेरे बराबर का कोई दीन है ही नहीं। देखो किथे खड़ी है निमरता। ते नाल ही फिर लिख दिता दयाल ना तुम सर। ये किहनूं कहा फिर? जिहदे नाल गल कर रहे हैं, सामने बैठे नाल गल कर रहे हैं, तुम सर। वो सर नहीं लिखिया, तुम सर। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੀਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਕੋਈ। ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ दयाल ना तुम सर। राजा एक दिन दयाल हो सकता, 2 दिन हो सकता, 10 दिन हो सकता। जे राजा ही मुक गया, दयालता कित्थे रहेगी? बड़ी उदाहरण दे रहे बंदे तो छोड़ो, जे 2 दिन मंगण बाद 4 दिन बाद काहदा दीन दे देगा? कुछ नहीं दाता दे सकता। हुण कहंदे मैं दीन भी इन्ना कि दुनिया च कोई नहीं, पर यह भी चेता भी मंग मैं किसी होर तो नहीं रहा, तेरे तो मंग, मैं किसी होर तो नहीं मंगता। हम सर दीन दयाल ना तुम सर। तेरे वर्गा दयाल कोई नहीं है। अब पतियार क्या कीजिए? कहदा पतियार है? क्यों पतिया? उन्होंने गल निबेड़ परे, हुण तां गल ही खत्म हो गई। मेरे वर्गा दीन कोई नहीं, तेरे वर्गा दाता कोई नहीं, गल मुक जाए। हुण पतियार किस चीज़ का है? ढेर काते है, डले काते करदा है? कर किरपा फटाफट। अब पतियार क्या कीजिए? कहते मेरे बचन तो सुन। बचनी तोर, तेरे बचन बचनी तोर। मोर, ये उधर ही बोले मोर। मोर कहते ने मोर जी कराए, इस तरह बोलते ने। मोर शब्द मतलब मेरा, उस प्रोनाउंसिएशन हो जाए। मोर मन मन तेरे बचना दे नाल, इहदा मतलब बाबा रविदास जी बचन कर रहे हैं। फिर ही गल निकल गया विचों, शब्द विचों आई गल। तोर बचन, तेरे बचन ने जेड़े। मोर मन माने, मेरा मन मनदा है, मेरे मन ने तेरे बचन मन्ने ने, किसी होर दे नहीं मन्ने। इसलिए कहते जन को पूर्ण
ਦੀਜੈ, ਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇ, ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਛੱਡੀ ਮੈਨੂੰ, ਐਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਪੂਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪੂਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਹ, ਮਹੀਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਦ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਆ, ਭਾਵ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਸਿਓ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੁਣ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਕੀਜੇ, ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਪੂਰਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ। ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ, ਰਮਈਆ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਰਮਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਰਾਮ ਤੋਂ ਰਮਈਆ ਬਣਿਆ। ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ, ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ, ਅਬੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਰੱਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਾਰਨ ਕਵਨ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਬੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੁਰੇ ਥੇ। ਆ ਮਾਧੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਧੋ, ਹੇ ਮਾਧੋ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਕਿਹਦੇ ਲੇਖੇ? ਤੁਮਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆ ਟੱਬਰ ਦੇ ਹੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਧੋ। ਮਾਧੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਲੇਖੇ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਤੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਨੁਕਤੇ ਤੇ, ਆਸ ਕੀ ਆ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੈ ਆਨ ਕੀ ਆਸ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਡਿੱਗੋਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਗਰਕੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਆਸ ਤੇ ਆਪ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਆਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋਂ। ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਜੇ ਜੀਵੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਗਤੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੂੰ, ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀਵੋ। ਜੀਵੋ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੀਵੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵੋ, ਜੀਵੋ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕਾਸ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲਈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾ ਲਈ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾ ਲਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚਾ ਵਗ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ
की बन जाएगा? मैं बदल बन जाना, मैनू कित्थे मिलेगा? बाबा रविदास जी कहते तू बदल बन जाई, जो तुम गिरवर तो हम मोरा। मैं मोर बन जू, मोर। तू बदल बन जी। कहता मैं बदल बन के तो बड़ा दूर, प्रीत कित्थे रह जूगी? तू धरती ते मैं आसमान च। कहते मैं मोर बन जाना, मोर तैनू देख के नचिया करूँ, इन्नी प्रीत आ। वो कहते फिर मैं बदल नहीं बनता, मैं इदू उपर चला जावा, बहुत उच्चा चला, मैं चंद बन दूंगा। एड्डी दूर बाज फिर कितने आ जाएगा मेरे को, तू छड़ देगा प्रीत? बाबा जी कहते ना 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 ना, मैं नहीं छड़ सकता। क्यों नहीं छड़ सकता? वो कहते तू जे चंद्रमा बन जाना, जो तुम चंद तो हम भय है चकोरा। मैं चकोर बन के तेन निहारिया करूं, जिधर जिधर तू घूमेगा मैं सारी रात तेन देख के घूमया करूं, पर निगाह तेरे जीरो, प्रीत तेरे जीरो। आस होगी ना, फिर ये टुट गई आस। जे रब बदल बन के टुट गई आस? नहीं, नहीं टुटी आस। कहते मैं बदल बन जाना, जे बदल बन के मैं मोर बन जाना। कहते मैं चंद्रमा बन जाना। बाबा जी कहते फिर मैं चकोर बन जाना। माधवे तुम न तोरो तो हम नहीं तोरै, तुम स्यों तोर कमड़ स्यों जोर। हुण इत्थे नाल बेनती करती कि मेरे भुलेखा अहंकार ना आ जाए। कहते माधव, हे माधो, माधवे तुम ना तोड़ो, मैं प्रीत नहीं तोड़ सकता। मतलब तू ना तोड़ती, जे तू ही तोड़ती तो फिर तो गल ही मुक गई ना। तुम ना तोड़ो, मैं की तोड़ सकता? तो हम नहीं तोड़े, तुम स्यों तोड़। जे मैं तेरे नाल तोड़ू फिर मैं जोड़ू किहदे नाल जाके? देखो प्रीत है, नहीं तोड़ सकता। उल्ट भी लिखा ना, संसार नाल तोड़ लई, तेरे नाल जोड़ लई। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। इत्थे किते भी जे तू ना तोड़ी, बस जे तू ही तोड़ती फिर मैं की कर सकता? क्योंकि तू सब कुछ कर सकता ना। तो हम नहीं तोड़े, तुम स्यों तोड़ कवर से मैं किधर जोड़ू जाके? फिर नहीं जोड़ सकता। तो फिर तेरा प्रीत कह जी, तेरा प्रेम कह जा। कहते जो तुम दीवरा तो हम बाती। इन्ना प्रेम है, तू दीवा बन जी, मैं बत्ती बन जा। बिच प्रेम हो गया। बत्ती हमेशा छड़ती है, पर एक ध्यान रखियो, बत्ती कली नूं ला के देखियो कदे भी नहीं लगती। दीवा चाहिए बिच बैठण। ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਤੀ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ ਦੀਵੇ ਦੇ। ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਦੀਵੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਉਹੀ ਬੱਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਵੀ ਰਵੇ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਵੀ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਰੂਹ ਚ ਲਪੇਟੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਊਗੀ, ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਊਗੀ। ये प्रेम है ना, एक तरफा प्रेम नहीं, दो तरफा, एक तरफा। कहते जे तू दीवा आवे तो हम बाती। वो कहते मैं तीर्थ बन जाना। कहते कोई नहीं, जो तुम तीर्थ तो हम जाति। जाति हुंदा जातरी। आ देखो फलाने तीर्थ ते जाना, फलाने तीर्थ ते जाना। बाबा जी कहते मैं किसी तीर्थ ते नहीं जाना। जे तू तीर्थ बन गया ना फिर मैं यात्री बन के आऊँ, जे तू नहीं है फिर नहीं मैं आउंदा। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਸ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜਤੀ। ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਜੈ ਜਾਓ ਤਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਜ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, बड़े 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 देवते ने उन्होंने मत्था टेक लिया। ना 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 ना, जह जह जाओ ताहा तेरी सेवा, तेरी सेवा। ये भी लकीर खिंचती थी, तुम स्यों ठाकुर। हे ठाकुर, हे परमात्मा, तेरे तो बद के और ना देवा। और कोई देवता तेरे तो बड़ा है ही नहीं, मेरा तो देवता तू ही है। गुर जैसा
नहीं देवा जे समझ ले गए। तुम सो ठाकुर और न देवा, मैनू कोई होर नहीं, मेरी तो आस ही आ गई। कित्थे खड़ी आस? फिर किवें नरक हो जाएगा? नरक होना ही तां है जे वो आस ही छड्ड दित्ती ओहदी। साडी तां आस फलाने बाबे ते आ, साडी तां आस फलानी जगह ते है। बाबा रविदास जी कहते मेरी आस तेरे ते आ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਸ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਰਕਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਹ ਜਹ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਮ ਸੋ ਠਾਕੁਰ, ਇਹ ਠਾਕਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਔਰ ਨਾ ਦੇਵਾ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ? ਆ ਨੁਕਤਾ ਪਕੜਿਓ ਹੁਣ। ਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮਰੇ ਭਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੱਟੇ ਜੰਮ ਫਾਸਾ। ਇਹ ਫਾਸੀ ਤੇਰੇ ਭਜਨ ਨੇ ਕੱਟਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਫਾਸੀ ਫਸਾ ਦੇਗਾ, ਹੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਠਾਕਰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਠਾਕਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਠਾਕਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਹੁਣ, ਪੱਥਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਹੁਣ ਕਿਹਾ, ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ, ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार। ये ठाकुर की गल है। तू ठाकुर बैरागरू मैं जेही कण झेरी राम, ये ठाकुर की गल है। कहते तुमरे भजन कटे जम फासा, इस करके भगत हेत, भगती का हेत आ मैनूं, भगती नाल स्नेह गावै रविदासा। ये गा रहा तेरी भगती दे प्रेम विच गा रहा मैं, तेरे नाल प्रेम है, प्रेम की जेवरी, प्रेम बन्या है तेरे नाल। तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत हेत गावै रविदासा। तेरी भगती दे विच मैं प्रेम दे विच गाउना, क्योंकि तेरा भजन की कर सकदा, फिर फासी कटदा। आजो नुकते ते फिर जे उहदा भजन है फिर तो फासी कट्टी जानी, क्योंकि आस की है। हर सो हीरा छाड़ के, हर सो हीरा छाड़ के, हर सो ये है। जे नूं छड़ दिता फिर आस की दी, करे आन की आस, करे आन की आस, करे आन का मतलब दूजियां दी, करे आन, आन मतलब अदर, होर किसी चीज़ की जे आस करता है ना। फिर कबीर साहब कहते ते नर दोजक, कहते गल मैं नहीं कही, सत पख है रविदास। ये गल रविदास जी ने कही आ, वो डुब जाणगे, गर्क जाणगे, खत्म हो जाणगे, फना हो जाणगे जिन्हां दी आस कीती है फिर किसी होर ते। बाबा कहता आस प्यासी दिन सरात, ये तो होना चाहिए। आस कितने होनी चाहिए है? ए दोए नैना मत छो फिर देखण की, सब कुछ खाला कागा, सब कुछ काला कागा, करंग ढंडोलिया सगला खाया मास। बाबा फरीद साहब की आस की देते फिर, कबीर साहब की आस की देते हैं, गुरु अर्जन देव महाराज की आस की देते हैं। आस तो उन्होंने सारे की इको ही है ना। फिर महाराज कहते आश कोई है, दर्शन प्यासी दिन सरात, चितवो अन दिन नीत, खोल कपट गुर मेले है, नानक हर संग मीत। आस्था ही है ये प्यास, ये आस उहदे सदा दी है, होर कोई आस नहीं है। ते जिन्हां दी फिर आस
परमेश्वर ते है, वाहिगुरू ते है। फिर वो कहते नरकां च नहीं जाणगे, दोजकां च नहीं पैणगे, दुखी नहीं होणगे, खुआर नहीं होणगे जीवन दे विच। माफ़ी मंगांगा फिर किते खुआरी दा कारण यही तां नहीं हैगा, दुखी होण दा कारण किते यही तां नहीं हैगा भी असी आस ही बदल दित्ती, साडी आस ही चेंज हो गई। किते नरकां च तां नहीं डिगे होए, घरां च कलेश किते इसे करके तां नहीं, साडी आस असीं होर रखी हुई है। किते बाबा रविदास दे सत्त तां नहीं बचने, वो तां लिखी गया है सत्त भख हैगे ना सत्त। फिर वो कहते सच्ची गल कहते नहीं, मतलब सच्ची गल दे विच असीं तां नहीं आ गए किते इसे करके आस किते होर ते रखी होवे। ते फिर दोजक वाली अग है, दोजकां च मरना है, दोजकां च डुबना है जे आस बदल गई। साडी तां आस यही है, कहते बहुत जन्म विछरे थे बादो जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो चिर पायो। चिर पायो, बहुत चिर हो गया। चिर शब्द पता ना तुहानूं, चिर का मतलब समा ही हुंदा है। बड़े चिर बाद मिले हो, चिर का मतलब समा। बहुत चिर हो गया भाई गुरुद्वारे नहीं गए, चिर। बड़े चिर बाद आए हैं, चिर। चिर का मतलब समा। कह रविदास आस लग दीवो चिर पायो, चिर चिर बहुत चिर हो गया। देखो कितने सोहने शब्द वरते ने, ठेठ पढ़ते हैं। चिर पायो दर्शन, तेरे दर्शन नहीं हो गए, हुण तां दर्शन दे, हुण दर्शन दे। साडी हालत है जी आ, तुम चंदन कहना कोई इस तरह कितनी प्यार है। ये देखो प्यार, एक एक शब्द ऐन रस नाल गुड़ंद होया पिया। तुम चंदन, तू चंदन है, हम रिंड बाप रे, असीं तां रिंड वर्गे, रिंड वर्गे। संग तुम्हारे बासा, पर हाँ संग तेरा रहिंदा है, रहिंदे तेरे कोल ही है। हुण गुरु कोले बैठे, चंदन कोले बैठे असीं। ये जे साडी आस ये है ना, आस तो उपर कोई वड्डी चीज नहीं। आस ही आ गई। नीच रूख ते ऊच पए हैं गंध सुगंध निवासा। जिहड़ी साडे वाली विचों बदबू सी वो मुक गई, तेरे वाली सुगंधी आउण लगी। सुगंधी तुसीं देखो कपड़े दे उत्ते असीं कपड़ियां नूं सेंट नाल नहीं धोंदे, सेंट नाल तां नहीं धोंदे, काहदे नाल धोंदे असीं? पानी नाल, साबुन नाल धो लैंदे, पर फिर भी किते पसीने की बदबू ना आवे। वो असीं इत्थे क ला लीए, इत्थे क ला लीए, किते होर कपड़े ते लाउने आ, फिर सारी दिहाड़ी उहदे चों बदबू नहीं आउंदी। वो जिहड़ी बदबू है वो सुगंधी दे थल्ले आ जाती है। फिर वो अगले नूं जदों कोई नेड़े आउंदा ते की हो जांदा, उहनूं उस सेंट दी साडे दी खुशबू आउंदी है। ते इहदा मतलब कि दुर्गंधी थल्ले बैठ गई ना, सुगंधी। एक होर देखो, मैं एक होर नुकता बयान करा। सुगंधी की शीशी भरी होवे ना, तुसीं ऐ रख दो, उस सदा ही सुगंधी रहनी, सदा ही। तो उन्होंने पिंडे नूं ला लिओ, दोपहर तो बाद वो भी मुक जानी। एडा माड़ा साडा शरीर है, देह बलीन। फिर समा मिलिया, समा हो गया, मैं समाप्त करा। एक गाथा आउंदी है पिछे जाके सवैयां दे नाल, वो गाथा दे विच आउंदा है, बड़ी कमाल की बाणी है। कदे समा मिलिया तो विचार करांगे। वो कहते भी इन्नी सुगंधी वाली चीज़ भी ना जे इस बॉडी नूं लग जाए, शरीर नूं लग जाए, 2 दिनों बाद वो भी दुर्गंध बन जाया करती है, इन्नी गंदी है ये साडी देही। देखो सुगंधी लाउण की लोड़ पई इहनूं, क्योंकि इहदे च दुर्गंधी आ रही है, पसीना आ रहा है, बदबू आ रही है, विष्टा की दुर्गंधी है, साढ़े लव निकले हुए गंदी हुई दुर्गंधी है, नक चों निकली हुई दुर्गंधी है, कन्न चों निकली हुई दुर्गंधी है। असीं साढ़े चों आउंदी आ, भावें असीं ऐ थोड़ा जिहा औखा जिहा होईए, मैं वचन कह रहा गा, पर आउंदे साढ़े चों, बाहरों तां नहीं आउंदे। ये की है फिर? इसे करके इदों थल्ले क्या है, सब दुर्गंध है। इदों थल्ले कुछ नक, उही नक है जिहदे चों सुगंधी आउंदी है।
पर जदों ये दुर्गंधी आती है यही बड़ा बुरा लगता है। सुगंधी भी यही लेंदा ना, खुशबू भी लेंदा। यही कन्ना दे विच किन्ने मिठे बोल, सब कुछ मिठा सुनता है, पर ये दुर्गंधी आती है, बंदा देखता नहीं होगा, कन्न डुलण लग गए। आई जुबान किन्ना मिठा बोलती है, किन्ना कुछ बोलती है, यही रसीली है, यही रस वाली है, पर जे दे चों बलगम आवे कितनी बुरी लगती है। फिर ये कौन भेजता? अंदरों आइए, ये गंदा है, ये गंदा है। इसलिए एवनी बाणी लिखती है, माटी को पुतरा कैसे नचता, की है तू बंदिया, तू है की? जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। आ हालत है। चलो समा हो गया, बाकी विचार पर शाम के दीवान